दुर्गापुर बैरेज में मंगलवार की दोपहर स्नान करने के दौरान 3 छात्र नदी की गहराई में डूब गए। काफी देर तक छात्रों का पता न मिलने पर पुलिस एवं राहत टीम घटनास्थल पर पहुंची एवं गोताखोर और नौका के सहारे से डूबे छात्रों को खोज शुरू कर दी। मंगलवार शाम तक नदी में तलाश अभियान जारी रही थी। घटना के बाद दुर्गापुर बैरेज में लोगों की काफी भीड़ जमा हो गई थी। डूबने वाले छात्रों में 17 वर्षीय सौम्यजीत साहा और 16 वर्षीय शुभोजीत नस्कर एवं वीके शील है, जो दुर्गापुर के एमएमजी टाउनशिप के B2 इलाके का रहने वाला है। तीनों MAMSC स्थित हाई स्कूल के 10वीं के छात्र बताए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक मंगलवार सभी स्कूल में पढ़ने के लिए गए थे और दोपहर स्कूल के टिफिन के दौरान स्कूल के 8 छात्र दामोदर में नहाने के लिए स्कूल से रवाना हुए थे। 8 छात्र दुर्गापुर बैरेज के दूसरे छोर पर स्थित लाइन होटल में भोजन किए। उसके बाद सभी दोस्त नहाने के उद्देश्य से नदी में उतरे थे। नहाने के क्रम में एक छात्र नदी की गहराई में डूबने लगा, जिसे देखकर दूसरे छात्र ने उसे बचाने की कोशिश की तो वह भी गहराई में डूबने लगा। तभी तीसरे छात्र की नजर पड़ी, वह भी बचाने के क्रम में नदी की गहराई में समा गया। बाकी छात्र नदी के किनारे पर स्नान कर रहे थे। बाकी 5 छात्रों ने नदी में खोज शुरू की एवं शोर मचाने लगे। छात्रों के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनते ही होटल के समीप खड़े लोग घटनास्थल पर पहुंचे एवं घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही बारजोड़ा थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची एवं आपदा टीम को इसकी खबर दी। कुछ ही समय के बाद आपदा की टीम एवं स्थानीय गोताखोरों के सहयोग से डूबे हुए छात्रों की तलाशी शुरू कर दी गई। इस बारे में पुलिस ने बताया कि डूबे हुए छात्रों को बरामद नहीं किया जा सका है। फिलहाल तलाशी अभियान जारी है। আরে বল না, কি অসুবিধা নেই, বল। কজন এসেছিল? 8 জন। কোন স্কুলে পড়ো? এবিবি হাই স্কুল। নিয়ে তারপর কখন এসেছিলে? ওই 2:30। হ্যাঁ, দাঁড়া এক মিনিট দাঁড়ান। কখন এসেছিল? 2:30 দিকে। নিয়ে তারপর দিয়ে সবাই ঠিক করলে চান করতে নামলো। ওরা 3 জন নামলো, সবাই ডুবে নেমে পরে যেতে যেতে ডুবে গেছে। 3 জনে ডুবে গেছে। কি নাম? একজনকে বাঁচাতে গিয়ে আর একজন ডুবে গেছে। বাকি দুজন এমনি করে বাঁচাতে ডুবে গেছে ওরা। কি নাম ওদের যারা ডুবে গেছে? একজনের নাম সৌম্যদীপ সাহা, একজনের নাম শুভজিৎ নস্কর আর একজনের নাম হচ্ছে বিকিশ সরকার। কি সরকার? কোথায় বাড়ি সব? একজনের বাড়ি টিচুতে আর দুজনের বাড়ি বর্জিরা বাড়ি মামলা বাড়ি। কোন ক্লাসে পড়ে সব? 10। সবাই 10। তো তুমিও 10-এ পড়ো? কি নাম তোমার? সুমন্ত অধিকারী। তুমি কোথায় থাকো? MMC। তোমার নাম? সুমন্ত অধিকারী। ছেলে কি মাঝে মাঝে এরকম বেরিয়ে পড়তো? না, ফার্স্ট টাইম। এই ফার্স্ট টাইম। সাঁতার জানে? সাঁতারও জানে না। কোনো কি আপনার কি আরও সন্তান রয়েছে? এক মেয়ে রয়েছে। কখন খবর পেলেন? কার মাধ্যমে পেলেন? ফোন করেছিল আমার মা। ওইখান থেকে অফিসার ধরেছিল, অফিসার ধরে নিয়েছে। এই মর্মান্তিক একটা দুর্ঘটনা, একে কি বলবেন? মানে আপনার নামটা স্যার? এই অবস্থায় আপনি? আমাদের মানে নাতি ছেলে থাকতে হচ্ছে বিটুতে থাকতো। MMC বলছি আজকে ওরা কি স্কুল গেছিল? হ্যাঁ, বাড়িতে স্কুলের নাম করে বেরিয়ে গেছে। তারপরে তো জানি না। তারপরে এখান থেকে আমার নাতি ছেলের ফোন ছিল ওই স্যারের কাছে, এই থানা ওরাই বাড়িতে ফোন করেছে। ফোন করে জানতে পারলো। কজন ডুবে গেছে? 3 জন। কোন ক্লাসে পড়ে এরা? আমার নাতি ছেলে পড়ে 10-এ আর আদার্স। কোন স্কুলে পড়ে? ওরা ভিরিঙ্গি স্কুল। এরা কি স্নান করতে এসেছিল? হ্যাঁ, স্নান করতে তো এসছে, নাকি করতে এসছে এখন তো জানতে হবে। স্নান করতে এসছে। কি নাম? বিকি শীল আমার নাতি ছেলে। আদার্স আর তো বলতে পারবো না। এখনো পর্যন্ত কাউকে খুঁজে পাওয়া যায়নি? না, 3 জন যারা আছে 3 জনকে তো একজনকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। আপনার নাম? আমার নাম অজয় কুমার সরকার। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, PBTV নিউজ। এই শোনো, এইবার প্রমোশন পেলে নিজের ফ্ল্যাট অন্তত নিতেই হবে। এই ভাড়া বাড়িতে আর থাকা যাচ্ছে না। আমি বালাজি রানীগঞ্জে আগে থেকেই খোঁজ নিয়ে রেখেছি। GT রোড পাঞ্জাবি মোড়ে 60টি ফ্ল্যাটস এর প্রিমিয়াম অ্যাপার্টমেন্টস অলরেডি বুকিং শুরু হয়ে গেছে। দ্যাট মিন্স অফিস, মলস সব এবার ঘরের সামনে। বুকিং এর জন্য যোগাযোগ করুন 9432546328 নম্বরে।
बनबहाल फाड़ी अंतर्गत जामबाद कोलियरी एजेंट ऑफिस के पास बीती रात स्थानीय निवासी लखन मल्ला के घर में एडवेस्टर तोड़कर चोरी होने से सनसनी फैल गई। इस घटना के संबंध में घर के मालिक राम लखन मल्ला और स्थानीय निवासी प्रभात बावरी ने कहा कि कल रात राम लखन मल्ला के घर चोर चोरी करने के मकसद से घर की छत को तोड़कर अंदर घुसे, लेकिन चोरी करने में असफल रहे। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटना यहाँ आए दिन होती रहती है, जिससे हम लोग बहुत ही आतंक में हैं। मौके पर बनबहाल फाड़ी की पुलिस आकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। रात को राम लखन माला जो है हम लोग को जामबाद कॉलोनी के ओएस था, अभी रिटायरमेंट आदमी है। इसका घर में कल रात को चोरी के लिए घुसा था। इसका दो लड़का है, एक तो ट्रीटमेंट करने गया बॉम्बे, एक लड़का काम करने गया बाहर। ये घर में लखन माला रहता था। कल तबीयत खराब था, इनका परिवार लेके गया क्वार्टर में। उसके बाद देखा फांका में है और रात को यही कांड किया है। अभी हम लोग सर्च कर रहे हैं क्या क्या जिनिस चोरी हुआ है नहीं हुआ, वो हम लोग देख रहे हैं। अभी बनबहाल फाड़ी का अली बाबू आया था, देख के गया है, वो आश्वासन दिया है जो चोरी किया है। आप लोग भी देखिए तदंत करिए और हम लोग भी देख रहे हैं, हम लोग भी देखेंगे, वो लोग भी देखेगा। यदि वैसे कुछ होगा तो हम लोग बोलेंगे बनबहाल बड़ा बाबू को ये आदमी को संदेह हो रहा है, और वो लोग भी तदंत कर रहे हैं कौन कर सकता है। आतंक तो है, ये है चोरी, कोलेरी में चोरी होगा, आतंक तो होना ही है। घर में कोई नहीं रहेगा, चोरी हो जाएगा, तो आतंक के है। अच्छा, चोर अंदर कैसे घुसा? चोर एल्बेस्टर जो था, एल्बेस्टर तोड़ के और अंदर घुसा। ये जो घर में सामान था वो घर में भीतर से बंद था, इसलिए कुछ लेने नहीं सका। आपका परिचय? हमारा परिचय है, हम बिनेडी गांव के हैं, प्रभात बावरी। हम यहीं रहते गांव में, उसका बगल में ही रहते हैं। यहाँ रात में चोरी हुआ है, ऊपर से कुछ ताला वगैरह तो टूटा नहीं है, ऊपर से छत का एल्वेस्टर तोड़ के अंदर घुसा है। अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं आया कि कुछ चोरी हुआ है, बट जो भी देखे हैं आप लोग का, वो सब तोड़ के अंदर घुसा है। कितना बजे का घटना है यहाँ? ये तो अभी तो फाड़ी वाला पुलिस आया था, तो वो लोग बोले कि 12:30 बजे तक पेट्रोलिंग हुआ है, तो शायद उसके बाद ही कुछ हुआ है। यहाँ पे ऐसा कोई प्रतीक नहीं हो रहा कि अभी कुछ चोरी हुआ है। किनका घर में चोरी हुआ? ये राम लखन मल्ला के घर में चोरी हुआ, जामबाद कोलियरी। आपका परिचय? मेरा परिचय, हम इनका भागना है। नाम? विनोद प्रसाद। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, PBTV নিউজ। এই শোনো, এইবার প্রমোশন পেলে নিজের ফ্ল্যাট অন্তত নিতেই হবে। এই ভাড়া বাড়িতে আর থাকা যাচ্ছে না। আমি বালাজি রানীগঞ্জে আগে থেকেই খোঁজ নিয়ে রেখেছি। জিটি রোড পাঞ্জাবি মোড়ে 60টি ফ্ল্যাটসের প্রিমিয়াম অ্যাপার্টমেন্টস অলরেডি বুকিং শুরু হয়ে গেছে। দ্যাট মিন্স অফিস মলস সব এবার ঘরের সামনে। বুকিং এর জন্য যোগাযোগ করুন 9432546328 নম্বরে। रानीगंज पंचायत समिति के तराड़ ब्लॉक 6 से आगामी पंचायत चुनाव के लिए CPIM से नामांकन दाखिल किए विकास चंद्र माछी द्वारा बिना हस्ताक्षर किए नामांकन वापस न लेने के बाद भी चुनाव के फाइनल लिस्ट में उनका नाम नहीं पाए जाने पर गुस्साए CPM समर्थकों ने रानीगंज BDO ऑफिस में ज्ञापन सौंपा। रानीगंज वार्ड संख्या 91 गिरजापाड़ा के CPIM पार्टी कार्यालय के समर्थकों ने BDO अभिक बैनर्जी से मामले में जांच करने की मांग की है। इस प्रदर्शन के दौरान मुख्य रूप से CPIM के सुप्रियो रॉय, हेमंत प्रभाकर, नारायण बावरी, रुनु दत्ता, मंगल हेमरम और कृष्णा दास गुप्ता उपस्थित रहे। दूसरी ओर BDO अभिक बैनर्जी ने कहा कि अब तो नामांकन दाखिल करने की तिथि भी पार हो चुकी है और चुनाव की तारीख बहुत नजदीक है। अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते, अब इस परेशानी का हल आपको खुद ही ढूंढना है, हमारी तरफ से कुछ नहीं हो सकता। ভাবে ফোনে বারে বলার পর আজকে যখন আমরা বিডিওর কাছে গেছি, বিডিও যে আচরণ করলেন সেই আচরণ হচ্ছে উনি প্রমাণ করে দিলেন যে উনি একটা নির্দিষ্ট দলের হয়ে কাজ করছেন। উনি আমাদের সামনে বলতে পারলেন না, কোনো ভিডিও দেখাতে পারলেন না যে বিকাশ চন্দ্র মাঝি সে হচ্ছে সশরীরে এসে
তার মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেছে। এটা তিনি কোনো ডকুমেন্টসে কোনো ভিডিওতে দেখাতে পারলেন না। আইন যা আছে, মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করতে গেলে একেবারে নির্বাচনী যে আধিকারিক আছেন তার সামনে উপযুক্ত কারণ সহ কেন তিনি মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করছেন সেটা বলতে হবে, এবং যদি আধিকারিক স্যাটিসফাইড হন, সন্তুষ্ট হন, তবেই কারো মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার হতে পারে, যেটা বিকাশ চন্দ্র মাঝির ক্ষেত্রে হয়নি, চিন্তা ভুঁইয়ার ক্ষেত্রেও হয়নি। আমরা দেখলাম যে ভিডিও পরিষ্কারভাবে কোনো ব্যাখ্যা দিতে পারছেন না। তিনি বলছেন যে ওই মনোনয়নপত্র উইথড্রলটা অ্যাকসেপ্টেড হয়ে গেছে, এখন কিছু করার নেই, আপনারা যেখানে খুশি যেতে পারেন। এই ভিডিও পরিষ্কারভাবে বলছি তৃণমূলের দালালি করছে, তৃণমূলের দালাল ভিডিও। এ যদি থাকে তাহলে এখানে পঞ্চায়েত নির্বাচন কেন, কোন নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষভাবে, শান্তিপূর্ণভাবে হতে পারে না। আমরা বিভিন্ন লেভেলে যোগাযোগ করি, তারপরে আমরা জানতে পারি যে বিকাশ চন্দ্র মাঝি কোনো উইথড্রয়াল ফর্মে সই করেনি। আমরা বারে বারে বিভিন্ন ভাবেই হচ্ছে যে এটার খবর নেওয়ার চেষ্টা করেছি, কিন্তু দেখা গেছে বিকাশ চন্দ্র মাঝি তার নাম প্রত্যাহার করেনি, সে কোথাও সই করেনি। একইভাবে নির্দল প্রার্থী চিন্তা ভুঁইয়া, সেও মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেনি। আমরা 21 তারিখে বিডিওকে লিখিত চিঠি দিই, রাজ্য নির্বাচনে যে দপ্তর আছে সেখানে আমরা দিই, স্টেট ইলেকশন কমিশনারকে। আমরা জেলা নির্বাচন আধিকারিক অর্থাৎ ডিএম তাকেও চিঠি দিয়ে বিডিওকেও চিঠি দিই। তারা আমাদের কাছে এখনো পর্যন্ত সদুত্তর দেয়নি। গত 26 তারিখে আমরা আবার চিঠি দিই যে আমরা 21 তারিখে আপনাদের কাছে অভিযোগ জানিয়েছিলাম, এখন পর্যন্ত সেই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলো আমাদেরকে জানানো হোক, প্রার্থীকে জানানো হোক, সেই প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে কিনা সেটা নিশ্চিত করা হোক। 8ই জুলাই নির্বাচন আসন্ন, পঞ্চায়েত নির্বাচনে এত কম সময়ে প্রচার করা যায় না, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা জানতে চেয়েছিলাম যে সে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে যেতে পারে, তার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। अगला प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है, बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। जीटी रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट्स, ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। दैट मींस ऑफिस, मॉल्स अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करें 9432546328 नंबर पे। चेंबर ऑफ कॉमर्स महिला विंग रानीगंज शाखा की ओर से आयोजित ट्रेड शो की आज से शुरुआत हुई है। ट्रेड शो के द्वारा गृहिणी महिलाओं और युवतियों को अपनी कला की प्रदर्शनी का एक बहुत ही अच्छा अवसर मिला है। इस शो में महिलाएं अपने हाथ से बनी हुई चीज़ों की प्रदर्शनी करती दिखी। ट्रेड शो में कुल 29 स्टॉल लगाए गए थे, जिनमें हमें गृहस्थी से लेकर साज सज्जा तक की काफ़ी आकर्षक चीज़ें देखने को मिली। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर रेलवे डीआरएम परमानंद शर्मा जी ने उपस्थिति दर्ज की। वहीं कार्यक्रम में मुख्य रूप से आरसीसी महिला विंग की अध्यक्ष सह ट्रेजरर रूबी गढ़वाला, संयुक्त अध्यक्ष बानी खैतान, आरसीसी के सलाहकार रमेश लोयाल का, सभापति अरुण भारतीय, सचिव मनोज केसरी, कार्यकारी अध्यक्ष रोहित खैतान, आरपी खैतान, कन्हैया सिंह और विजय खैतान मुख्य रूप से उपस्थित रहे। ओम गणान खैतान से कि वो हमारे गेस्ट का फेलिसिटेशन करवाएं। थैंक यू रूबी। हमारे डीआरएम साहब को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं कि उन्होंने अपने व्यस्त समय में से हम लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए यहाँ आए।
रानीगंज लेडीज विंग जो खुली है, आज से करीबन 60-65 वर्ष पहले इस संस्था के संस्थापक श्री गोविंद राम जी खेतान ने रानीगंज व्यवसायियों की समस्याएं जो होती हैं उसको दूर करने के लिए एक संगठन बनाया था। और उस समय के 20 जो बड़े बड़े व्यापारी थे वो हमारे फाउंडर मेंबर हैं, जिनका नाम हमारे नीचे बोर्ड पर लगा हुआ है। वो सब मिल के इस संस्था की स्थापना हुई। इतने वर्षों बाद जब समय बदला, आज समाज की महिलाएं इस तरह आगे बढ़ चढ़ के काम कर रही है, तो हमारे जो एडवाइज़र लोग हैं उनमें विशेष करके मैं श्री राजेंद्र प्रसाद जी खेतान की बहुत इच्छा थी कि एक ऐसी यूनिट बने जिसमें हमारे समाज की महिलाएं भी आगे आएँ। राजेंद्र प्रसाद जी खेतान बहुत सोशल वर्कर हैं, प्रेसिडेंट हैं, अन्य अन्य संस्थाओं से जुड़े हुए रहते हैं, कहीं कहीं बाहर भीतर सब जगह जाते हैं तो वे देखते हैं कि सब जगह इतना महिलाएं आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है, रानीगंज की महिलाओं को क्या प्रॉब्लम है। इस विषय पे उन्होंने चिंता की और उनको लगा कि उनको एक प्लेटफॉर्म की दरकार है, जिससे कि कम पैसों में उनको हम लोग अगर जगह प्रोवाइड कर दें, तो उन्होंने कहा कि भाई आप लोग मिनिमम चार्ज लेकर, खाली माने एसी का खर्चा भाड़ा ये सब कुछ नहीं लेना है, खाली उनको मिनिमम ठोक करके इनको प्रोत्साहन दिया जाए। हम लोगों ने जब ये लेडीज विंग की स्थापना की, आज हमारे पास 29 स्टॉल लगे हुए हैं। सर, आपको ये जो दिख रहा है ये तो आधा है, आधी झांकी है, बाकी अभी बाकी है, ऊपर भी आपको चलना है। तो इस तरीका का ये माहौल यहाँ पर बना है, हम लोग भी सोच नहीं सकते थे। कल तक हम लोगों के पास पहली हुई आ रही है कि हमें और मैदान में करने की चेष्टा करेंगे। इतना ही कहूँगा, धन्यवाद। परम आदरणीय श्री परमानंद जी शर्मा, डिविजनल रेलवे मैनेजर, आसनसोल डिवीजन, ईस्टर्न रेलवे। व्यक्ति अपना व्यक्तित्व जो होता है उसका, बहुत सी बातें उसमें शामिल होती है। सिर्फ चेहरा सुंदर होने से व्यक्ति महान नहीं होता है। व्यक्ति महान होता है अपने आचरण से, अपने व्यवहार से। और वो परिचय कल हमारी महिला विंग को, इन लोगों को, मुझे तो बहुत सौभाग्य हुआ है कई बार शर्मा साहब के साथ में रूबरू होने का, इनके दर्शन करने का, इनकी जो मधुर वाणी है उसका आनंद लेने का। देखिए क्या सरलता। रीजनल रेलवे मैनेजर, उसके बारे में जिनको जानकारी है वो जानते हैं कि किस ग्रेड के अफसर हैं ये, क्या इनके पास पावर है, क्या इनका कार्य क्षेत्र है। कल इनको निमंत्रण दिया जाता है और बहुत खुशी हो रही है। इनका एक सपना था कि हमारे रानीगंज में जिस तरह हमारे आदमी लोग अपनी बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं, आने वाले समय में हमारी महिलाएं जो एंटरप्रेन्योरशिप में उनसे कहीं कम नहीं है, वो भी उनके साथ कदम से कदम चला सके। आज वो सपना पूरा हो रहा है। हमने रानीगंज में लेडीज विंग जो बनाई है, ये अपना कार्यक्रम कर रही है और जितनी भी रानीगंज की लेडीज है, हमने सबको मौका दिया है कि वो अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को समाज के सामने, सबके सामने रख सके। और उस पर 4 चांद हमारे डीआरएम सामने लगा दिया कि भाई इन्होंने सिर्फ 1000 टोकन अमाउंट में 1 महीना इनको ऑप्शन मिल रहा है कि रेलवे में अपना प्रोडक्ट ये शोकोज कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस तरह की यदि लेडीज एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने की कोई भी स्कीम आती है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हम तक शेयर करें ताकि हम अपनी लेडीज विंग को उसको फॉरवर्ड कर सके। मैं लेडीज विंग के सभी सदस्यों को धन्यवाद दूंगा इतना अच्छा आयोजन करने के लिए, एवं हम चाहते हैं कि इस तरह का आयोजन बीच बीच में होते रहे। मैं हमारे एडवाइजर्स को धन्यवाद दूंगा कि आज वो यहाँ पधार के हमें आशीर्वाद दिया और इस तरह से हमें प्रोत्साहन दे रहे हैं कि आगे भी हम और काम करते रहे। लेडीज विंग जिसने इसको ऑर्गेनाइज किया है, वानी जी, रूबी जी, ये मेरा प्रिविलेज है कि आप लोगों ने मुझे आज यहाँ आने का मौका दिया है। और इनफैक्ट मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कई बार बुलाने की कोशिश की है, ऐसा नहीं है, लेकिन हर बार कुछ न कुछ मतलब अभी नहीं, अगले हफ्ते, अगले महीने करके चलता रहा है। फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली जो कहिए, कल जब आप लोग आए
तो आज का दिन फिक्स हो चुका था। मैं क्वार्टर से पीसीओ में आए थे और वो टाइम तय था, बट दिया। ये फॉर्चुनेटली ऐसा था कि मैं उस इंगेजमेंट के जस्ट बाद फ्री हो रहा था, तो मुझे यहाँ आने में कोई दिक्कत नहीं। यही टाइम अगर आप मुझे इस बार भी मना करना पड़ता है, तो ये सहयोग होता है जिसमें कि इस बार हमें आने का यहाँ मौका मिल गया आपके प्रोग्राम में। ये काफी अच्छा इनिशिएटिव है लोकल लोगों के एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने का। और यहाँ पे जो कुछ स्टॉल लगे हैं, जैसे कुछ हैंडीक्राफ्ट आइटम है, बैग वैग हैं, तो इनके एंटरप्रेन्योर को मैं एक बताना भी चाहूंगा कि भारतीय रेल एक वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के नाम पे स्टॉल्स का प्रोजेक्ट चला रही है, ऐसे ही छोटे एंटरप्रेन्योर्स को अपना प्रोडक्ट को पब्लिसिटी देने के लिए। तो अगर आप लोग इसमें इंटरेस्टेड हो तो हमारे सीनियर डीसीएम साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं। आज हम लोगों ने द ट्रेड शो का इनॉग्रेशन करवाया है श्री परमानंद शर्मा जी, जो कि डीआरएम ऑफ आसनसोल है, उनके हाथों से। और हमारे सभी इस मौके पर हमारे सभी एडवाइज़र्स, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, हमारे नॉन एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, आरसीसी लेडीज़ विंग की मेंबर्स सभी उपस्थित थे। और काफ़ी जोश है सभी में, और सभी उम्मीद कर रही हैं कि काफ़ी सफलतापूर्वक यह ट्रेड शो होगा। तो मैं सभी से निवेदन करती हूँ कि अपने फ्रेंड्स, फैमिली के साथ आएँ और ख़रीदारी करें, देखें क्या क्या सामान है। हमारे लेडीज़ विंग के मेंबर्स द्वारा लगाए गए स्टॉल्स हैं, ताकि ये इवेंट को हम लोग सक्सेसफुल बना सके भी हम लोग इस तरह का इवेंट करें। तो इसीलिए मैं सभी से निवेदन करती हूँ कि आएँ और इस ट्रेड शो में शामिल हों। सर, डीआरएम सर आसनसोल डिवीज़न का जो अनाउंसमेंट अभी किए हैं कि रेलवे स्टेशन में जो आप लोगों का कैंप या स्टॉल लगाया जाएगा, इस बारे में मतलब क्या ख्याल है, इस प्रोसीड्योर क्या है, अगर बताइए। मंथली ओनली 1000 रुपीज़ में 1 स्टॉल 1 प्रोडक्ट का स्कीम है ये। तो ये रेलवे स्टेशन में अगर कोई लगाना चाहे अपना स्टॉल तो वो 1000 रुपीज़ में लगा सकते हैं। उसके लिए इनसे पहले से बात करके बुकिंग करनी पड़ती है। तो इन्होंने हमें भी ऑफ़र दिया है कि हमारी लेडीज़ विंग की मेंबर्स अगर कोई चाहे तो इस ऑफ़र का लाभ उठा सकते। एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। कब तक आप लोग ये मतलब क्राइटेरिया फुलफिल करके वहाँ लगाएंगे? ऐसे अभी हम लोगों ने इस विषय में बातचीत नहीं की, हमारे मेंबर्स तक ये मैसेज पहुँचा दिया गया है। हमें जैसे ही कोई का इंटरेस्ट दिखेगा हम लोग इस पर काम करेंगे। सर, कितने स्टॉल है मैम, क्या क्या है? आज हमारे इस ट्रेड शो में 29 स्टॉल्स लगाए गए हैं। इनमें काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं, कुर्ती, नाइट वेयर, बेडशीट, गिफ्ट आइटम्स है, सिल्वर प्रोडक्ट्स है, स्टील प्रोडक्ट्स है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स है, कुछ स्कूल के भी स्टॉल्स है, बैंक के भी स्टॉल्स हैं। तो हम फूड प्रोडक्ट्स है, खाने पीने की भी सामग्री है। तो हर प्रकार के स्टॉल्स एक ही छत के नीचे यहाँ मिल जाएगा। आपका परिचय? मैं CA रूबी गरवाला, ट्रेजरर रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स और चेयरपर्सन आरसीसी लेडीज। धन्यवाद। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। अगला प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है, बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। GT रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट्स ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। दैट मींस ऑफिस, मॉल्स, अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करें 9432546328 नंबर पे। अंडाल काजी नजरुल इस्लाम हवाई अड्डे पर आसनसोल के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा का मंगलवार के संध्या आगमन हुआ। इस अवसर पर अंडाल ब्लॉक TMC के नेताओं ने उनका गर्मजोशी से अभिवादन किया, जहां से वे सीधा अंडाल की सीदुली हाटतला मैदान पहुंचे, जहां उन्होंने TMC प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। मंच पर INTTU से जिला अध्यक्ष अभिजीत घटक, कौशिक मंडल, कृष्णा बैनर्जी, राजू मुखर्जी व अन्य लोग उपस्थित रहे। जनसभा में उपस्थित हजारों समर्थकों को संबोधित करते हुए शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि बंगाल में पंचायत चुनाव के रूप में लोकतंत्र का पर्व है, सभी को इसमें हिस्सा लेकर बंगाल की प्रगति के लिए मतदान करने की जरूरत है। इतना ज्यादा हमेशा रिकॉर्ड मार्जिन से मैं जीत रहा था, वहां पे कुछ खेल करके, खेल तमाशा करके मुझे जिस तरह से उन्होंने, मैं मारा हुआ सिपाही हुआ या हारा गया सिपाही बना, उनकी वजह से वो कुछ जगह वो खेल तमाशा कर रहे थे। दिल्ली वाले हमारे भारतीय जनता पार्टी के दोस्त लोग जो हरकतें की थी, और जो आदमी रिकॉर्ड मतों से हमेशा जीतता था, देश में सबसे ज्यादा इसके पिछले चुनाव में
सबसे ज्यादा वोट शेयर परसेंटेज किसी का था तो आपके अपने बिहारी बाबू का था, आपके अपने शत्रुघ्न सिन्हा का था। लेकिन इस बार उन्होंने छल कपट करके, खेल तमाशा करके, और जिस तरह से उन्होंने सताया या हराया या मारा, उसका बदला हमारे अपने बंगाल में और हमारे अपने आसनसोल के परिवार ने, इस जनता जनार्दन ने, ये मेरा बृहद परिवार जो है, যিনি প্রার্থী তিনি আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন পঞ্চায়েত সমিতির আমাদের দুজন প্রার্থী রয়েছেন। পঞ্চায়েত সমিতি 4 কৌশিক মণ্ডল এবং পঞ্চায়েত সমিতি 5-এর মঞ্জু ভট্টাচার্য আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন। এছাড়াও গ্রাম পঞ্চায়েতের যারা তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীরা রয়েছেন তারা সকলে এখানে উপস্থিত আছেন। আমাদের মধ্যে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি ভাই অভিনব মুখার্জি এখানে আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন। এছাড়াও শরণদা থেকে শুরু করে যারা তৃণমূল কংগ্রেসের এই অঞ্চলের নেতৃত্ব মঞ্চে উপস্থিত আছেন, এবং অবশ্যই আমার সামনে এই অঞ্চলের যারা আমাদের জনগণ যারা আগামী 8 তারিখে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন, যারা ভোট দেবেন। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। अगला प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है, बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। जीटी रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट्स ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। दैट मींस ऑफिस, मॉल्स अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करें 9432546328 नंबर पे। ईसल के कनस्तोड़िया क्षेत्र के बेलबाद कोलियरी कार्यालय में ईसल परिवार के एक मेधावी छात्र श्री अरिजीत मंडल को सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि अरिजीत ने माध्यमिक की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए पश्चिम बर्धमान जिले में 5वां स्थान हासिल किया है। उनकी इस उपलब्धि में कनस्तोड़िया क्षेत्रीय महाप्रबंधक अनिल कुमार सिन्हा के नेतृत्व में बेलबाद कोलियरी प्रबंधक बीटी बैनर्जी ने उन्हें सम्मानित किया। उल्लेखनीय है कि अरिजीत न्यू हांसदा डीहा ग्राम का निवासी है और उनके पिता बादल मंडल ईसल केंद्र क्षेत्र के अंतर्गत छौरा 7/9 पीट कोलियरी में टिम्बर मिस्त्री के रूप में कार्यरत है। इसके बारे में क्षेत्रीय महाप्रबंधक ने कहा कि अरिजीत की यह सफलता उनकी व्यक्तिगत जीवन के लिए तो उपलब्धि है ही, इसके साथ साथ यह उनकी निजी परिवार और व्यापक संदर्भों में समूची ईसल परिवार के लिए गौरव का विषय है। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। এই শোনো, এইবার প্রমোশন পেলে নিজের ফ্ল্যাট অন্তত নিতেই হবে, এই ভাড়া বাড়িতে আর থাকা যাচ্ছে না। আমি বালাজি রানীগঞ্জে আগে থেকেই খোঁজ নিয়ে রেখেছি। জিটি রোড পাঞ্জাবি মোড়ে 60 ফ্ল্যাটসের প্রিমিয়াম অ্যাপার্টমেন্টস অলরেডি বুকিং শুরু হয়ে গেছে। দ্যাট মিন্স অফিস, মলস সব এবার ঘরের সামনে। বুকিং এর জন্য যোগাযোগ করুন 9432546328 নম্বরে।